નમસ્કાર, ન્યૂઝ ગુજરાત સાથે હું છું ધવલ। દિવસભરના મુખ્ય સમાચારો પર એક નજર કરીએ। સોમનાથના સાનિધ્યમાં આજે સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ કાર્યક્રમના બીજા દિવસે કેન્દ્રીય મંત્રી તથા રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં સૌરાષ્ટ્રીયન અને તમિલના લોકો અને નેતાઓનો સંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો। સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે સૌરાષ્ટ્રીયન તમિલો અને વરિષ્ઠ નેતાઓ વચ્ચે સંવાદ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી હરદીપસિંહ પુરીએ સૌરાષ્ટ્રીયન તમિલોને સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમે આપણા દેશની વિવિધતામાં એકતાનો ઉત્સવ છે। એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનું સ્વપ્ન પૂર્ણ થાય તે માટે દેશના વિભિન્ન ભાગો એકબીજાને મળી સંસ્કૃતિ, સાહિત્ય, ખાનપાન અને વિચારોનું સતત આદાન પ્રદાન કરે, જેથી રાષ્ટ્રીય એકતાને સુદૃઢ કરી શકાય। ભારતીય સંસ્કૃતિ વિશ્વની સૌથી પુરાતન અને સૌથી વિકસિત સંસ્કૃતિઓમાંની એક છે। કાશી તમિલ સંગમ, સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ જેવા કાર્યક્રમો દ્વારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના વિવિધ પ્રદેશો વચ્ચે સંબંધો અને રાષ્ટ્રીય એકતાને મજબૂત કરવાની નેમ સાર્થક કરી છે। ભારતીય સંસ્કૃતિ વિવિધ સંપ્રદાયો અને વિવિધ સ્થાનિક સંસ્કૃતિઓના આદાન પ્રદાન માટે વિવિધતામાં એકતાનું ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ પ્રસ્તુત કરે છે। તમિલનાડુના વિવિધ અગ્રણીઓના પ્રદાનને યાદ કરતા ઉમેર્યું હતું કે સ્થાનિક સ્વરાજ્ય અને લોકશાહીના મૂળ તમિલની સંસ્કૃતિ જોવા મળે છે। વધુમાં કાંચીપુરમ પાસેના ચોલાવંશ સમયના આરોગ્યલક્ષી બાબતોના પ્રદાનને, સાહિત્યમાં સુબ્રહ્મણ્યમ ભારતીય પ્રદાન અને ચતુરંગને 6ઠ્ઠી અને 7મી સદીના સ્થાનિક ક્ષેત્રમાં કુથિરાનેલું અને સંગમ સાહિત્યના અન્ન અને જૂની ગ્રામ સંસ્કૃતિ વિશેના મળતા સંદર્ભો તેમણે પ્રસ્તુત કર્યા હતા। રિપોર્ટર મિતેશ પરમાર, ગીર સોમનાથ। And fortunately, he is going for a history from the Rhineland. However, India is in the Rhineland and the community, and we give our 3 ministers in the Rhineland. And he very important to Parliament. The definition is there, we say it there, and we will say it. And from Chester, the night of winter, all of them proceed fuel. So our training is in India. But then we go past event in the history of entire India. But that too, matter of Shishama of two society. How do we find like this? नमस्कार, मेरा नाम पद्मा सिंह है। मैं तमिलनाडु में सेलम से आती हूँ। हम सब लोग तमिलनाडु और मदुरई, तिरुचि आदि से आते हैं। ये सौराष्ट्र तमिल संगम में हम गुजरात के परिवार और हमारे तमिलनाडु कल्चर आज दोनों को एक मिलन से देखने के लिए अच्छा ऑफर दिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा नमस्कार और इसका व्यवस्था के लिए सबको धन्यवाद करूँ। प्रणाम। नमस्कार जी, मेरा नाम नागनाथ बाबू है, मदुरई से आया हूँ। पहले मेरा प्रणाम है हमारे देश के लिए जो भी मेहनत किया है, देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात है हमारा कल्चर बचाना है। अभी ये सौराष्ट्र तमिल संगम के लिए आए हैं, हम बहुत खुश हो गए। मतलब इतना इंतजार नहीं किया, हम बहुत बढ़िया किया है इंतजार, सब कुछ ठीक हुआ है, बहुत खुश है। हमारे प्रधानमंत्री और जो गुजरात मिनिस्टर को धन्यवाद कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा शब्द गुरु महान जी का आशीर्वाद मिले, धन्यवाद। हाँ, बिजनेस के बारे में कहेंगे तो यहाँ पीतल का माल ज्यादा बनता है, हमारा वहाँ साड़ी बनाते हैं, तो ये तो ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी तो मैं तो इतना ही जानता हूँ, मेरा लाइन तो अलग है, और जो मंदिर का सेवा और काम करते हैं। धन्यवाद। मैं मानता हूँ हमारी सनातन संस्कृति भी मानती है। पूरे भारतवर्ष के अंदर वर्षों से हमारा धर्म, हमारी सनातन संस्कृति खत्म करने के लिए बार बार आक्रमण होते हैं। दुनिया में कहीं कहीं जगह
जो संस्कृतियां हैं थी तो पूरी विनाश हो गई, वो लुप्त हो गई। लेकिन वर्षों के आक्रमण के बाद भी हमारे भारत का जो धर्म है, भारत की जो संस्कृति है, आज तक कोई तोड़ नहीं पाए। उसके लिए हम सब हमारे जो भक्ति भाव से हमारी संस्कृति की रखवाली करने वाले लोग भी समय समय पर मिलते रहे और मुझे गर्व है, हम सब गर्व है। आज फिर से एक ऐसा लीडर देश के अंदर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को कल्चरल सिक्योरिटी के लिए आगे बढ़ के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसके लिए हमारे राष्ट्र के ऊर्जा मंत्री यहाँ पर पधारे हैं, दिल्ली से अपना अंतिम वक्त देते आप सब अपने रूप संगने के लिए वर्षों पहले यहाँ से जो निकल के कहीं पर महाराष्ट्र में, केरला में, तमिलनाडु में जाकर बसे हुए उनको अपने भाव से जोड़ने के लिए, अपनी धरती से जोड़ने के लिए, यहाँ पर बुलाने के लिए जब पीएम साहब ने कहा, गुजरात सरकार ने सहर्ष तो उसका स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद आप जब सब रेलवे स्टेशन पे आए, हम इतने इमोशनल थे। हम जब वहां तमिलनाडु में आए तब भी आपके जो भाव देखे, आपके जो बॉडी लैंग्वेज देखी, उसमें क्या भाव था। आज भी कदाच उसको शब्दों में डिस्क्राइब करना हो, उसका वर्णन करना हो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ आप आए, सौराष्ट्र में आए, अपनी मातृभूमि में आकर जो भाव आपने भी महसूस किया, ऐसा ही भाव हम तमिलनाडु में सब मिनिस्टर्स आए थे, तभी ऐसा ही आकार आपने दिया था, तब से मन बना लिया था। आपको गुजरात के अंदर कहीं पर भी कोई भी जगह पे तकलीफ ना पड़े, इसके लिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने सूचना दी थी, आप जाकर वहीं रहो, अपने एक दिन देश को छोटी सी भी तकलीफ ना हो उसका ख्याल रखो। उसके लिए आज मुंबई में आए प्रवासन मंत्री मुलुक भाई दया भी अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करके आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो उसका पूरा ख्याल रखेंगे, रखते हैं। अगर हमसे कोई भी गलती हो जाए छोटी बड़ी तो प्लीज इन्फॉर्म अस, we will try to solve it very immediately। पर मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप सब यहाँ आए हैं, भगवान के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद यहाँ की मिट्टी जो बरसों पहले आपने यहाँ से शुरू की, तो उसका जल, उसकी मिट्टी ले जाकर रामेश्वर के अंदर भी आप उसको अर्पण करेंगे, ऐसी मेरी दिल की भावना है। और आपके वहां से भी जो मिट्टी आएगी, जो पानी आएगा, हम भी सारा स्वीकार करके यहाँ आपकी याद के तौर पर भी रखेंगे। देखिए, पर्सनली मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। बहुत शुभ अवसर है, शिवरात्रि है, और ये जो इनिशिएटिव दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और मैं दोनों सरकारों को, गुजरात की सरकार का भी और तमिलनाडु की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, हमारी जो संस्कृति और सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और हमारी जो ह्यूमन हमारे भाई बहन है, मैं भारतीय इतिहास की बात करता हूँ। अभी 1000 वर्ष पहले कोई हमारे पे कोई बाहर से इन्वेजन हुआ तो लोग उस समय कई वर्षों में यहाँ से निकल के उन्होंने बाकी जगह जाके उन्होंने अपना नई जिंदगी की शुरुआत की। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तमिल और काशी का संगम है, मैं तो गया था वहां पे, वो तो मैंने जब आके वो देखा, मैं हैरान था। मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता था कितना लोगों में वो जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे होती है ना, कनेक्ट था। लोग जब आए, और ज्यादातर दक्षिण भारत के लोग उस समय जिस दिन मैं गया था वहां, और जब जिसकी इनॉग्रेशन के एक दिन उसी दिन, और अभी जो तमिल सौराष्ट्र का संगम है, देखिए
अब मैं तो मेरा गुड फॉर्चून था, मुझे यहाँ पे आज आने का मौका मिला। बहुत देर से इच्छा थी कि मैं लॉर्ड सोमनाथ जी को भी ब्लेसिंग्स के लिए आऊं। और ये इसका सिर्फ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस और हमारे लोगों में उनकी हिस्ट्री, उनकी लिंग्विस्टिक, उनकी कल्चरल रूट्स की रीडिस्कवरी के बारे नहीं है, बट ये एक भारत श्रेष्ठ भारत और देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप यहाँ से देखिए, अभी आज 300 हमने हमारे भाई बहन हैं तमिलनाडु से जो वहाँ पे इनके परिवार बड़े 100 पता नहीं कितने 100 वर्ष 1000 वर्ष पहले वहाँ गए थे, पर उनकी कल्चरल आइडेंटिटी देखिए तो वहाँ पे भी वो सौराष्ट्रियन कहलवाते हैं। अभी भी उनमें से जो इंटरैक्शन के दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग मांग हुई कि एक यूनिवर्सिटी का वहाँ ब्रांच खोलिए, तो एजुकेशन मंत्री महोदय ने कहा कि हम इसको कंसिडर करेंगे। और देखिए इसमें हमारे देश के लोग दक्षिण से नॉर्थ में आएंगे, दक्षिण से नॉर्थ में आएंगे। आप लोग गए थे यहाँ से तमिलनाडु। ये जो नेशनल इंटीग्रेशन और कल्चरल डाइवर्सिटी जो हमें स्ट्रेंथ देती है, मैंने अपना उदाहरण दिया। मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई, मेरे पेरेंट्स जो हैं रेफ्यूजी बन के आए 1947 में। मेरे फादर रावलपिंडी से मदर पेशावर से थे, हम लोग दिल्ली में सेटल हुए। और अभी जो नया भारत है, अभी आप देखिए, एक तरफ इकोनॉमी अर्थव्यवस्था देखिए, इस समय हम 5वें स्थान पे हैं। ये भारत में जो आक्रमण हुआ उससे पहले, अंग्रेजों के आने से पहले हमारी जो जीडीपी थी ग्लोबल जीडीपी की 25% थी। 190 साल के बाद वो उनकी हुकूमत के बाद वो 25% गिरती 3% से नीचे गिर गई। अभी हम दुनिया भर में मोदी जी के दायित्व संभालने के बाद 2014 के बाद हम 9वें स्थान पे 5वें स्थान पे आ गए हैं। और इस समय हमारी जीडीपी है 3.8 ट्रिलियन और चौथे और तीसरे स्थान पे दो ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी 4.1 ट्रिलियन 4.3 ट्रिलियन है। मैं लगता हूं कि मोदी जी की सरकार और मोदी जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, आने वाले कुछ महीनों में, साल में हम दुनिया के तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2047 जब हम 100 वर्ष होंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एक विकसित देश, और हमारी कॉलोनियल वो जो माइंडसेट लेगेसी उसको शेड करना है। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है कि मुझे इतने वर्ष के बाद मैं आना चाहता था और मुझे बुलावा आया, आपने मुझे भेजा यहाँ पे, और मैं आप साहब के बीच में अपने जो तमिलनाडु से भाई बहन आए हैं सौराष्ट्रियन तमिल्स, और मैं समझता हूँ ये तो प्रोसेस की शुरुआत है। आपने इंटरेक्शन के दौरान भी सुना, आप लोग कह रहे हैं कि ये आप और आगे इसको डीपर